In this lecture, we will discuss about harmonic function. Harmonic function. पहली डेफिनेशन हम इसके लिए लिखते हैं, ए फंक्शन which satisfy the Laplace equation. Which satisfy the Laplace equation is called harmonic function. Is called harmonic function. अब हार्मोनिक फंक्शन और लाप्लास इक्वेशन. अब लाप्लास इक्वेशंस कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी. तो लाप्लास इक्वेशन we can write down as del square h upon del x square plus del square h upon del y square is equal to 0. So second order partial derivative with respect to x and y. This is called the Laplace equation. Now we move to the another definition of this. So h के ही टर्म में लेते हैं कि h हार्मोनिक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है. Let h equal to h of xy. So h is function of xy. So then h is said to be harmonic. Said to be harmonic if del square h upon del x square plus del square h upon del y square equal to 0. So satisfy this condition, then function is said to be the harmonic function. So we remember one note, a function which is harmonic, that means fz is harmonic. So then u and v both are harmonic. Both are harmonic. Now we shall prove this thing. So how to prove this? So we can write down one statement based on this. So if fz is equal to u plus iota v is an analytic function, is an analytic function, so then prove that u and v both are harmonic. U and v both are harmonic. So we shall prove this. Now how to prove this? We know that बहुत ही सिंपल है इसको प्रूव करना. We know that by CR condition. We know that the Cauchy-Riemann conditions in Cartesian form. Cartesian form में CR condition क्या होती है? Del u upon del x equal to del v upon del y. This is equation 1. और del u upon del y is equal to minus del v upon del x. Now अब हार्मोनिक फंक्शन के लिए हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव. तो नाउ डिफरेंशिएट वन partially. Differentiate one partially with respect to x. अब x के रेस्पेक्ट वन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज u और v क्या है, दोनों फंक्शन एक्स वाई हैं. तो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस. तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस v भी ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो दिस कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स डेल वाई. अगेन ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब अगेन differentiate 2 partially with respect to y. अब y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
minus del square v upon del y del x. So this is our equation number 4. Now adding 3 and 4. अब एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई और माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। और हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ाई हमने कि डेल एक्स डेल वाई ऑलवेज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, सो इक्वल होते हैं, दैट विल बी कैंसल्ड, सो गिव्स अस 0। अब ये कंडीशन क्या आ गई, दिस इज द कंडीशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन में हार्मोनिक फंक्शन। तो ये लाप्लास इक्वेशन हो गई, तो द फंक्शन u is harmonic. So here we write down as u is harmonic function which satisfy the Laplace equation. तो जब u हार्मोनिक फंक्शन होगा तो सिमिलरली v के लिए भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिमिलरली v is also harmonic, v is also harmonic. Okay, so we have proved. Now we remember one thing, u and v. समटाइम्स हमको जब u गिवन होगा v कैलकुलेट करना होगा, तो बेसिकली v इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ u. So if fz is equal to u plus iota v is an analytic function, analytic function, so then u is given, we obtain v, fz एनालिटिक फंक्शन है, u गिवन है, v ऑब्टेन करना है, तो v इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ u। तो v क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ u। तो अब इसको हमें प्रूव करना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी प्रूफ है हमारे पास। तो while proving this, so same we use the CR conditions. So we know that del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y equal to minus del v upon del x. So these are the CR conditions. Now we study one thing, that means exact differential equation. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच गिवन इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, so then it is said to be exact. It is said to be exact if del m upon del y is equal to del n upon del x for exact differential equation. Now v हमें कैलकुलेट करना है, we obtain v. So when we are going to obtain v, so we take the total differential. So total differential, that means v is also function of x, y. So total differentiation we write down as dv. dv we can written as del v upon del x into dx plus del v upon del y into dy. Now यूजिंग CR कंडीशंस, तो यहाँ पर हमने CR कंडीशन यूज कर दी एबो कंडीशंस को, यूजिंग CR कंडीशन। तो CR कंडीशन मीन्स डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू है माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स और प्लस डेल v अपॉन डेल वाई क्या है, डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई। तो डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई, तो दिस इज इक्वल टू dv। तो व्हेन वी इंटीग्रेट
अब इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स, और प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी वाई, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वी टेक एज सी, तो प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, सो दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वी। अब एग्जैक्ट के रूल्स आपने पढ़े होंगे, यहाँ पर कुछ कंडीशन या कुछ हमारी जनरल फॉर्म्स होती हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। अब आप बात करते हैं कि ये हमने डिस्कस क्यों किया। इसको डिस्कस करने के पीछे हमारा जो इसकी जो राइट हैंड साइड पार्ट है, दिस पार्ट, ये हमारा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन रहा है। तो जब हम इसका कंपेयर करेंगे इससे, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे एम डी एक्स और प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, डी बी को हम अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एम की वैल्यू, एम इक्वल टू क्या होगा हमारा, डेल यू अपॉन डेल वाई होगा, और एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, डेल यू अपॉन डेल एक्स होगी। अब दिस इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अब दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल वाई इंटू एम, एम क्या है हमारा, डेल यू अपॉन डेल वाई है, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स और इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसको इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स दिस शोज द हार्मोनिक कंडीशन। मतलब अगर यू आपका हार्मोनिक है तो वी कैन ऑब्टेन द वी। ओके, सो हम वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वी। नाउ अब एक दो कंडीशंस मैं आपको बताता हूं इसमें, जैसे डिफरेंशिएशन, सेपरेट डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। सेपरेट डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूले हम यूज करते हैं डायरेक्टली, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई अपॉन एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स हम क्या लिखते हैं, एक्स डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टू द स्क्वायर। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में आ रहा है तो यू कैन राइट डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ हमें लिखना है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम वही, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स, वो हमने लिखा ही है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और अपॉन, तो यहाँ तो वाई अपॉन एक्स अपॉन ये एक्स स्क्वायर होगा इसका, वन करेक्शन, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर इज एक्स, एक्स स्क्वायर, और हियर वी राइट डाउन एज एक्स स्क्वायर। ओके, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ रहा है कि इंटीग्रेट दिस, तो वी कैन राइट डाउन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, तो इस तरीके की क्वेश्चन हम यूज करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वी। नाउ वी टेक one question based on this, so for obtaining value of v when u is given, so now we take one question based on harmonic function. So if fz equal to log z, when z is not equal to 0, z is not equal to 0, so show that this function satisfied the CR condition, this function satisfied
the CR conditions. Now, तो फर्स्ट पार्ट हम CR कंडीशन के लिए, देन वी कैन से द हार्मोनिसिटी ऑफ द फंक्शन इफ फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट. So now fz, so given fz equal to log z. Now this can be written as log z replaced by x plus iota y, so x plus iota y. Now we have fz और fz को रिप्रेजेंट कर देते हैं w से, और w हम इक्वल टू लेते हैं u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू log x प्लस आयोटा y. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा. द वैल्यू ऑफ log x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. So this is the formula of log x plus iota y. So we will write down this formula now. So when we compare the real and imaginary part, so real part u is equal to 1/2 log x square plus y square, and v is equal to tan inverse y upon x. Now first we satisfy the CR condition. तो satisfy करेंगे CR conditions को, तो then when we obtain del u upon del x, तो del u upon del x, x u को x से रेस्पेक्ट करें तो 1/2 log x means x square plus y square, and differentiation of x square is 2x और y treat as a constant. तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल्ड हो जाएगा, तो this gives us x upon x square plus y square. और डेल u अपॉन डेल y, u को y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. नाउ सिमिलरली वी कैलकुलेट डेल v अपॉन डेल x, और डेल v अपॉन डेल x, तो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट करेंगे इसको, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई के रेस्पेक्ट करने पर वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, तो 1/x. तो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो गए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब देखते हैं CR कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है. तो CR कंडीशंस क्या है हमारी, डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई, यू एक्स इक्वल टू वी वाई. तो यू एक्स कितना है हमारा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और वी वाई कितना आ रहा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इट मीन्स दैट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स. और फॉर सेकंड कंडीशन, तो दिस इज डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ऑल्सो सेटिस्फाइड. तो हम लिख देंगे यहाँ सी आर सेटिस्फाइड, सी आर सेटिस्फाइड. और सी आर तो सेटिस्फाई हो गई. अब फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है. अब फंक्शन को हार्मोनिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले u का डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो मीन्स वी टेक एज डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसका डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो वी राइट डाउन एज डिनोमिनेटर into differentiation of numerator which is 1 minus numerator differentiation of denominator 2x, y का 0 हो जाएगा upon denominator to the square. So this we can write down as y square minus x square upon x square plus y square to the whole square. अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर. अब डेल यू अपॉन डेल वाई तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है. अब वाई स्क्वायर चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टू द स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. अब हार्मोनिक, u इज हार्मोनिक. अब u हार्मोनिक है तो इट मीन्स दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब दोनों को जब ऐड करेंगे
तो दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो वी कैन टेक एलसीएम एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर जो है ऐड हो जाएंगे क्योंकि एलसीएम सेम है। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, दिस मीन्स जीरो। तो सेटिस्फाई, तो यू इज हार्मोनिक, हेंस यू इज हार्मोनिक। जब यू हार्मोनिक है और फंक्शन एनालिटिक है, जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो पर, तो दैट मीन्स वी ऑल्सो हार्मोनिक, तो वी भी हार्मोनिक होगा। ओके, और यू कैन चेक ऑल्सो नाउ। We will discuss more problem based on harmonic function in next lecture.